You know, we are having two books. One is English text, right? We are having two books which is called English text as well as supplementary reader. Let me show out textbook. First book is First Flight. This is our regular text. And the second book which I am having, the name of the book is Footprints Without Prints. These are supplementary lessons which we are supposed to study later on, right? And as we are lagging behind, we will try to cover as much as possible because almost we are having first term exams, and when this lecture will be delivered to you, it will be almost August, right? So as a part of our learning, right, in first, you can say first only term, we will have 6 chapters. Chapter number 3, that is 2 stories about flying. Chapter number 4, chapter number 5, and chapter number 6. Chapter 5 and 6 is part 1 to part 2, 100 lessons, historical lessons. Now, without wasting much time, let us start with our topic. Today's topic is 2 stories about flying. Chapter number 3. Chapter number 3, lecture number 1, part 1. Part 1 is First Flight. Right? We are having chapter 3. Chapter 3, part 1. Right? His First Flight. Acha, the writer of this title is Liam Flaherty. Liam Flaherty. Acha, some instructions are given over here. Take for example, see in your material as well as textbook, glossary is given. What is meant by glossary? Meanings given in the material or textbook. At the end of the page, on right hand side, each and every meaning is given over there. In textbook also and in material, page number 21. I am talking about material because I am supposed to convey this lesson from material. Material and textbook, both are supplementary to each other. There is no difference. Total textbook is printed in material, word to word. So there is no issue. Understood? Now, glossary means meanings given in a material. Now, before we start a lesson, let me say, you can have your textbook ready with you or you can have material. If you are watching this lecture with material, then you open page number 21. Page number 21. And if you are studying from textbook, if you are having textbook with you, then you can come to page number 32. So is it clear, children? Material page number 21 and textbook page number 32. Am I clear, children? Shall I proceed with my work? Okay, good. Now, our first title is His First Flight. His means whose? A seagull. The main character in this title, part 1, is about seagull. Now you see, children, what is meant by seagull, you know. Seagull are the birds dwelling very near to the sea. Their basic food is fishes and other insects found in ocean or a sea. Basically, seagulls are found on islands or places located on the sea coast. Because you know, nature cycle is such a complex cycle. God has given each and every living being
how to live. In science we have studied acceptance of survival. कुदरत ने हम सब जीवों को किस तरह इस धरती पे, इस दुनिया में रहना है, वो कला हमको दी है. तो इस चैप्टर में हम सीगल की बात करेंगे. सीगल नामक जो बर्ड है, छोटा सा बर्ड आता है, that is basically found on small islands or a place is located near sea coast. Why? Because seagull is a bird belonging to sea, and that is why the name of the bird itself is seagull. Understood? तो इसमें बात यह है, जैसे प्रकृति का नियम है, साइंस ऑफ रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है. कोई भी जीव इस दुनिया में आता है, जब छोटा होता है तब उसको जीने का एक्यूमेन मतलब कला अपने मां बाप से सीखने को मिलती है. मान लो आप है, मैं हूं. जब हम छोटे थे, जब इस धरती पे आए, जब हमारा जन्म हुआ, तब आहिस्ता आहिस्ता हम अपने परिवार के, अपने घर के रीति रिवाज, उम्र के हिसाब से समझने लगे. पहले हमको किसी ने गोद में उठाया, जिसे मां बोलते हैं. फिर थोड़े बड़े हुए तो एक बंदे की उंगली पकड़ के हम घर के बाहर के पैर रखने लगे, जिसको हम पिता बोलते हैं, दादा बोलते हैं. आया समझ में? तो हमको ये लोग ने बाहरी दुनिया दिखाई. फिर आहिस्ता आहिस्ता हमको सब समझ में आने लगा. जैसे हम बड़े हो गए, बड़े होते गए, ऐसे रहना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है. और आफ्टर कमिंग टू सर्टेन एज वी स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग्स विच इज बिलोंगिंग टू अवर फैमिली. अभी आप बच्चों तो छोटे हो, हम बड़े हो गए, आपके पेरेंट्स बड़े हो गए, पढ़ाई खत्म कर दी, फिर काम करने का समय आया, तो वो भी हम पहले से सीख चुके थे, क्योंकि घर में से ही पहले से जिम्मेवारी अलॉट की गई थी. क्योंकि हम अपने माता पिता को देखते थे. अभी आप छोटे बच्चे हो तो आप अपने माता पिता को काम करते हुए देखते हो, घर चलाते हुए देखते हो. तो जब आप बड़े होगे तब वो सब सीख जाएंगे ना, कि जैसे अभी तक माता या पिता ने काम किया. जब आप सर्टेन एज पे पहुंच जाओगे, आपकी पढ़ाई खत्म होगी, तब आप ये जिम्मेवारी ले लोगे. फिर मदर या फादर रिटायर हो जाएंगे. ऐसे जनरेशन चलती है, एक के बाद एक. अच्छा, आपके पिता, आपके माता को ये सब किसने सिखाया था? आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, दादा और मां ने. अच्छा, उसको किसने सिखाया? तो उसके माता पिता ने, मतलब आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने. तो ये सदियों से परंपरा चली आती है कि हमारे माता पिता, हमारे घर के वडील जो होते हैं, वो आनारी नस्ले को, अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं. इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू ह्यूमन बींग्स, बट इट इज टोटली लिमिटेड टू ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ. बच्चे लोग, आप लोग नेशनल ज्योग्राफी देखते होंगे, 1.5 साल से घर पे बैठे हो, देखते होगे, नहीं देखा ही होगा. तो आप नेशनल ज्योग्राफी में देखते हो ना, शेर कैसे अपने बच्चे को तैयार करते हैं शिकार के लिए, लेपर कैसे अपने बच्चे को तैयार करते हैं, राइट? डियर कैसे अपने बच्चे को भागने के लिए तैयार करते हैं, कि अगर कोई खतरा मन रहा है, अगर जरा भी खतरे का एहसास हुआ
तो इधर से कैसे भागते हैं। सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी नस्ले को ये सब सिखाते हैं, कैसे अटैक करना, कैसे डिफेंड करना, कैसे जिंदा रहना, सर्वाइवल। तो अब मूल बात पे आते हैं। तो ये जो सीगल का फैमिली था, जिसमें मदर सीगल था, फादर सीगल था, ब्रदर एंड सिस्टर था, और ये छोटा बच्चा था। बेसिकली आफ्टर कमिंग टू सर्टन एज, जब ये मैंने अभी अब बोला कि अब थोड़ी उम्र के बाद, सर्टन एज के बाद हमको काम धंधा करना पड़ता है, रोजी रोटी कमानी पड़ती है, ठीक वैसी तरह हर एक जीवात्मा में ऐसा होता है। तो जब ये सीगल जो है, जो डरपोक है, इधर उसका कैरेक्टर डरपोक सीगल का है, उसके भाई बहन ने कैसे उड़ान भरनी है, कैसे पानी में डाइव लगानी है, कैसे पानी के अंदर फोकस करना है और फिश को पकड़ के बाहर लाना है, सब सीख लिया था। और वो लोग एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन ये जो बच्चा था वो डरपोक था, पानी से डरता था, उसको डर लगता था कि अगर मैंने पहली उड़ान भरी, अगर मैं पानी में गया और अगर शायद मैं ड्राउन हो जाऊं तो मेरा क्या होगा। इसीलिए he was scared to take his first flight. He was literally scared to take his first flight. His mother insisted him, his father insisted him, brothers and sisters also encouraged him. सबने कोशिश की, लेकिन ये बंदे के अंदर से डर नहीं जा रहा था, क्योंकि वो डर गया था। और आपको मालूम है, डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके दिमाग में, उसके मन में एक डर घुस गया था कि मैं ये नहीं कर सकूंगा। वो डर कैसे निकाले? सबने कोशिश की, मां बाप हार चुके थे, थक चुके थे, ये बंदा समझ ही नहीं रहा था। अपनी सारी कोशिश कर ली थी, लेकिन ये आगे नहीं आ रहा था। तो ये था बैकग्राउंड। फिर उन लोगों ने कैसे उसको टेम्प्ट किया, कैसे उसको फोर्स किया, प्लेजेंट फोर्स, जबरदस्ती नहीं, प्लेजेंट फोर्स। और कैसे उसने पहली उड़ान भरी और सारा डर कैसे उसके दिमाग से निकल गया। वो नॉर्मल सीगल हो गया, अपने भाई बहन की तरह वो भी फिशिंग करने लगा। माँ बाप भी खुश, परिवार खुश होने लगा। ठीक है, इसी तरह मान लो कि आप पढ़ाई करके थोड़ी स्ट्रगल करते हो, फिर आपको अच्छी सी जॉब मिल जाती है, आप कोई जगह पे सेटल हो जाते हो, तो आपसे ज्यादा खुशी आपके माँ बाप को मिलेगी। क्यों? कि वो सोचेंगे चलो बच्चा सेटल हो गया, बच्चे को अच्छा काम मिल गया, अब हमारी चिंता खत्म। तो ठीक उसी तरह जब सारी कोशिश के बावजूद ये सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी, एंड ही वॉज सक्सेसफुल, he has conquered his fear and bought the first fish. Whole family was happy. Understood? तो ये उसका सेंट्रल आइडिया, बेसिक आइडिया था। तो लेट अस सी, राइट? I am with material page number 21, and if you are switching to textbook, you come to page number 32. Once again, glossary. मैं जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा आपको मीनिंग बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, लेकिन मटेरियल में आप नजर रखना, टेक्स्ट बुक पे आप नजर रखना, जो मीनिंग में बोलूं वो आप पेंसिल से मार्क कर लेना, पेन से लिख लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होवे। Am I clear, children? Shall I start my topic? Okay. Page number 21. Since the earliest times, humans have dreamed to conquer the sky. वो तो एक लाइन है, महज एक लाइन है।
बेसिक कंसेप्ट ये लेसन का ये है कि हाउ टू सर्वाइव, बिकॉज गॉड हैज प्रोवाइडेड ईच एंड एवरी एक्यूमेंट टू ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग फॉर हिज और हर सर्वाइवल, और वो एक्यूमेंट यूज करके हम अपनी जिंदगी जीते हैं। क्योंकि अगर ये हमने यूज नहीं किया तो मर जाएंगे, बराबर। अगर शेर का बच्चा है, वो शिकार करना नहीं सीखेगा तो वो भूखा मर जाएगा। अगर हिरन का बच्चा भागना नहीं सीखेगा तो कोई उसको आसानी से ट्रैप कर लेगा, मार देगा। अगर हम काम धंधा नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। सही बात है ना? वी हैव टू लर्न दैट ट्रिक्स, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो लेट अस सी कल क्या हुआ था। फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो है वो पास्ट वाले पैराग्राफ है, उसके बाद लेसन शुरू होता है। ओके, लेट अस सी। द यंग सीगल was alone on the ledge. Ledge का मीनिंग edge, EDGE। edge मतलब धार, किनारा। क्योंकि उसका जो रेसिडेंस था, इट वॉज लोकेटेड ऑन अ क्लिफ इन द मिडिल ऑफ द ओशन। आइलैंड जैसा कोई पार्ट था, मैं आपको बताता हूं। और आइलैंड का जो ऊपर का भाग, जो सपाट वाला भाग था, फ्लैट भाग था, उसके अंदर उसका घोंसला था। और लेज के बाद जमीन का हिस्सा जब खत्म हो जाता था, उसके नीचे बिल्कुल बड़ा सा ओशन था। वेव्स लैशिंग टुवर्ड्स आइलैंड। ये ज्योग्राफी तो आप पढ़े हो, आपको मालूम है आइलैंड के चारों ओर पानी होता है। जब जमीन का हिस्सा खत्म हो जाता है तब पानी का हिस्सा शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल किनारे पे उसका घोंसला था। उसके माँ बाप भाई बहन सब किनारे पे आते थे, डोट लगाते थे और फिर उड़ान भरते थे। सीगल भी कोशिश करता था, वो भी अपने घोंसले में से बाहर आके किनारे तक आता था, लेकिन वो किनारे पे अटक जाता था क्योंकि उसमें हिम्मत उड़ान की नहीं थी। He was scared. He was literally frightened of getting drowned. Understood? Because one thing was totally fixed in his mind, that I am not able to swim. I don't know swimming. सबको स्विमिंग आता है, मेरे को नहीं आता है। ये उसका महज वहम था, ऐसा नहीं था। लेकिन ये जो डर उसके दिमाग में घुस गया था, इसीलिए वो लेज तक आता, एज तक आता, फिर वापस चला जाता। वो आगे की कोशिश नहीं करता था। अंडरस्टूड? His 2 brothers and his sister had already flown away a day before. उसके 2 भाई बहन, उसने तो 2 दिन पहले उड़ान सीख ली थी, राइट? He had been afraid to fly with them. कोशिश सबकी एक साथ शुरू हुई, लेकिन ये कोशिश में नाकामयाब रहा। उसके भाई बहनों ने सीख लिया, इसने नहीं सीखा, राइट? Somehow, when it had taken a little run forward on the brink of the ledge and attempted to flap his wing, he became afraid. He was very, very scared. क्या होगा? मैं भैया उड़ान नहीं भरूंगा, मेरे को डर लगता है, कहीं को मैं ऐसा करूं। Understood? The great expanse of the sea stretched down beneath. क्योंकि उसके घर के बाहर जो आइलैंड था, उसके बाहर तो मीलों तक ओशन था। जहां तक आपकी नजर घूमे पानी पानी था। वो इसीलिए डर गया था कि इतनी विशाल जलराशि में, इतने बड़े ओशन में अगर मैं मर गया तो, डूब गया तो, भैया कुछ नहीं करने का, आप बैठे रहो। वो डर की वजह से आगे नहीं बढ़ता था, राइट? Miles down, he felt certain that his wings will never support him, so he bent down his head and ran back to the little hole under the ledge where he slept all night. लेज तक आता था, पानी को देख के घबरा जाता था और वापस अपने घोंसले में चला गया। ये गई काल की बात है, यस्टरडे की बात है, राइट?
even each of his brothers and little sisters, whose flapping wings were far shorter than his own, क्योंकि वो घर में एल्डर था, उसके छोटे भाई बहन ने भी ये सब सीख लिया था, लेकिन वो नहीं सीखा था, राइट? Fled, but he failed to muster the courage. Muster means gather. लिखो आप मीनिंग. Muster means gather. वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाता था, right? Muster means gather and take that plunge, which appeared so desperate that his father and mother had to come around, calling him shrilly. Shrilly means shouting. Unbraiding. Unbraiding means shouting at the top of his voice. उसकी जो आवाज होती है, मतलब गुस्सा होना. जब ये नाटक कर रहा था, उसके भाई बहन भरते थे, वो लेज पे आके अटक जाता था, आगे नहीं जाता था, तो पेरेंट्स ने भी उसको डांटा कि यह क्या लगा रखा है, तुझसे छोटे तेरे भाई बहन उड़ान भर के आते हैं, फिशिंग करके आते हैं, और तू इतना बड़ा हो गया है, अपना काम नहीं करता, सिर्फ एक ही बात बोलता है, डरता हूं डरता हूं डरता हूं. ये बिल्कुल गलत बात है. कोशिश तो करनी पड़ेगी ना. और वो उस पर गुस्सा हुए. कौन? माँ बाप. आप कोई गलत काम करते तो माँ बाप गुस्सा होते हैं ना, ठीक इसी तरह, राइट? threatening him to let him starve on the ledge unless he flew. उसके पापा ने तो उसको अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आप फिशिंग नहीं सीखोगे, अगर आप उड़ान नहीं भरोगे, तो आप भूखे मरोगे, आपका खाना पीना सब कुछ बंद, हम आपके लिए नहीं रहेंगे, आपका खाना आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा, आप खुद फिशिंग करो, खुद उड़ान भरो, खुद फिश पकड़ के अपना पेट निभाओ, हम आपको मदद करने वाले नहीं हैं. इनफ इज इनफ. तो यही बात है, जब हम बड़े हो जाते हैं, सर्टन उम्र पे पहुंच जाते हैं, तो माँ बाप ये बोलते हैं कि भैया अब क्या है, अब बड़े हो गए, आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, अब कुछ काम धंधा करने लगो. कई बार हम जैसे देते 22-22, 25-25 साल का नौजवान ऐसे उधर उधर टाइम पास करते हैं, घूमते हैं, और 50-55 साल के माँ बाप रोटी कमाते हैं. दैट इज शेम टू दिस पीपल. आज एक यंगस्टर को यह सोचना पड़ेगा कि आज मैं इतना यंग हूं, जवान खून हूं, तो अब ये मेरी जिम्मेवारी है कि अब मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं और मेरे माता पिता को रेस्ट दूं. ऑन द कॉन्ट्रास्ट, माता पिता वर्किंग करते हैं, ये लोग टाइम पास करते हैं, अनाप शनाप गप्पे में लगाते हैं. दैट इज द सैड थिंग विच वी आर वॉचिंग एवरी डे इन द सोसाइटी. हम तो रोज बाहर देखते हैं, बहुत दुख होता है कि ये लोग कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, कब लोग ये समझेंगे कि नाउ वी आर सफिशिएंटली यंग, नाउ इट इज अवर टाइम टू वर्क, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज एंड एटलीस्ट अलाउ अवर पेरेंट्स टू रेस्ट. बिकॉज बेटा उम्र का काम तो करते हैं, माँ बाप की भी उम्र चलती है. जितना 25 साल का बच्चा यंगस्टर काम करता है, वो 55 साल का आदमी नहीं कर सकता. आया समझ में? सो दैट वॉज द स्टोरी. दैट वॉज 24 आवर्स अगो. ये सब घटना 24 घंटे पहले हुई थी, मतलब यस्टरडे हुई थी. सिंस देन नोबडी केम नियर हिम. उसको बुलाना ही सबने बंद कर दिया, अकेला छोड़ दिया, नाटक कर रहा था डर का. That day before, all day long, he had been watched by his parents flying about with his brothers and sisters. He was watching his parents. बार बार उसके माँ बाप, उसके भाई बहन उड़ान भरते थे, छोटी बड़ी मछली लेके आते थे, खाते थे, मौज करते थे. ये बिल्कुल सहमासा अपने नेस्ट में, अपने बोरों में बैठा रहा, सबको देखता रहा, क्योंकि हिम्मत ही नहीं छूटा पा रहा था. Understood? Perfecting their skills in art of flying. Teaching him how to skim. Skim का मतलब देखो, skim means move lightly. जो ग्लॉसरी में उसका मीनिंग दिया है, move lightly. Move lightly just above the surface of the ocean.
क्योंकि स्किमिंग का मतलब है पानी, पानी जो ऊपर होता है ना, तो ये सीगल, ये सब पक्षी है, वो सरफेस ऑफ द ओशन पे तैरते हैं डक की तरह, और जैसे सरफेस पे मछली आती है छोटी बड़ी, उसको पकड़ लेते हैं. दैट इज अ ट्रिक. दिस ट्रिक is God gifted, which at a specific time age, at the specific age, brothers and sisters of him has lived, learned, but this person was not ready to accept it. Right? Skimming the waves and how to dive for fish. It had, in perfect, seen his older brother catching his first herring. Herring is the name of a fish, and devour it. Devour का मतलब eating. He was watching, he has watched. His elder brother has just caught a big fish, herring fish. He caught that fish, flew to the ledge, and आराम से वो बंदा खा रहा था, अपनी मेहनत का, अपनी पहली कमाई खा रहा था, और ये देखता था. Standing on the rock, while his parents circled around, raising a proud crackle. Crackle means encouragement. When his brother was able to catch the first fish, parents were very proud of him. And the crackling sound was made. Sound of encouragement, applause. इन लोगों ने पहला निवाला चुना. Understood? And all the morning, the whole family had walked up around the big plateau midway opposite cliff, taunting him for his cowardice. On one side, his brother was encouraged. He was applauded. On the other side, comparing this with his brother, the act of cowardice was produced by him. एक साइड उसके भैया को घर में से शाबाशी मिल रही थी क्योंकि उसने पहली कमाई की थी, वो जिंदगी जीने का पहला तरीका सीख गया था. और दूसरी तरह ये जो आलसी सीगल था, डरपोक सीगल था, उसको फैमिली मेंबर्स टॉन्टिंग कर रहे थे, उसकी कावर्डाइज पे हंस रहे थे. अंडरस्टूड? कि देखो इसने किया तो तू क्यों नहीं कर सकता. हमारे घर में भी ऐसा होता है ना, हम देखते हैं कि भाई एक लड़का पढ़ता है, एक लड़की पढ़ती है, दूसरा लड़का नहीं पढ़ता रहे, तो कंपैरिजन हो ही जाता है. पेरेंट्स बोलते हैं कि इसने ये किया तो तूने क्यों नहीं किया, ये कर सकता है तो क्यों तू क्यों नहीं कर सकता है. एक बाप का नाम रोशन करता है तो तू क्यों बाप का नाम डुबोने बैठा है. एवरी पेरेंट्स हैज अ राइट टू थिंक. तो ठीक इसी तरह उसके भैया को एनकरेजमेंट मिला, अप्लॉज मिला, और उसको टॉन्टिंग मिला. किसको? वो आलसी सीगल को. राइट? सन, इवनिंग का समय हो गया, दिन चला गया, दिन ढल चुका था. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, blazing on the ledge that faced the south. Now almost it was a noon time. ये सुबह की बात थी. सुबह सुबह में ही उसको डांट मिली. Now sun was almost in the middle of the sky. That means it was almost noon time. Blazing means shining hot. और आपको मालूम है सूर्य की सबसे ज्यादा गर्मी दोपहर को लगती है, because sun is giving maximum amount of heat in afternoon. Right? दोपहर हो चुकी थी, गर्म वातावरण हो चुका था. Blazing on the ledge and faced the south. He felt the heat because he has not eaten since the previous nightfall. कल से उसको डांट मिल रही थी, कुछ खाना नसीब नहीं हुआ, इसीलिए उसको खूब डांट मिल रही थी. Right? He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with other hidden under his wing, he closed one eye and then another. He pretended to be falling asleep. नाटक करने लगा, लेज तक गया, हिम्मत नहीं जुटा पाया, एक आंख बंद करके एक पैर ऊंचा रख के सोने की कोशिश कर रहा था, नाटक कर रहा था. राइट?
स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. उसको ऐसा लगा कि उसकी परिवार थोड़ी उसकी दया करेंगे, उसके माँ बाप उसको बुलाएंगे, लेकिन परिवार स्ट्रिक हो चुका था. माँ बाप भी बहुत स्ट्रिक हो चुके थे कि तेरे को सीखना तो पड़ेगा ही, तू चाहे कितना भी नाटक कर ले, भले भूखा सो जाए, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन तेरे को करना तो पड़ेगा ही. आए समझ में? He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk in their nest. Dozing means sleeping deeply. बहुत गहरी नींद सो रहे थे और वो जाग रहा था. क्यों जाग रहा था? क्योंकि उसके पेट में कुछ नहीं पड़ा था. है समझ में? His father was preening. Preening का मतलब देखो, what is meant by preening? Right? Here preening means cleaning. देखो पेज नंबर 22 पे उसका मीनिंग दिया है. Preening means cleaning. His father was preening the feathers with his white beak. ये खासियत होती है एनिमल्स, बर्ड्स की, अपने शरीर को साफ करते हैं. Only his mother was looking at him. मां का जीव था. मां सबसे दयालु इंसान होते हैं धरती पे. पिता स्ट्रिक हो सकते, माता कभी स्ट्रिक नहीं हो सकती. मां सब देख रही थी, उसको दया आ गई कि लड़का भूखा है कल से, हम स्ट्रिक हो गए लेकिन भूखा है. राइट? शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प. हम्प मतलब थोड़ा उबली हुई जगह, थोड़ा ऊंची जगह. उसके प्लेटो पे उबड़ खाबड़ जगह होती ना, थोड़ी ऊंची रेज हुई जगह पे मां बैठी थी. While her white breast thrust forward, she was looking at her. Now and again, she tore a piece of fish that lay at her feet and scraped each side of the beak towards on the rock. वो कोई शिकार करके लाई थी. फिश को वो खोल रही थी अपने बीक से, फिर उसके मांस को खोल के वो रॉक के साथ रगड़ रही थी, मतलब क्लीन कर रही थी, साफ कर रही थी. राइट? The sight of the food maddened him. बच्चा ये सब देख रहा था, भूख भी लगी थी, कल से कुछ खाना नहीं खाया था, तो माँ की एक्टिविटी को वो बहुत देख रहा था अच्छी तरह से. उसको ऐसा लगता था माँ हर एक निवाला अपने लिए क्लीन कर रही है, अभी मेरे को देगी, अभी मेरे को देगी. लेकिन माँ भी अपने दिल पे पत्थर रख लिया था कि इसको सिखाना तो है ही, चाहे कुछ भी हो जाए उसको नहीं देने का है. राइट? The sight of the food maddened him. How he loved to tear the food that way, scraping his beak now and again to wet him. Wet का मतलब लिखो, क्या है wet का मतलब? इधर दिया है देखो. Wet means tear open, right? Tear open. Okay? Ga, he cried, begging her to bring him some food. Gaw, she screamed in a derivation. Derivation means mockingly. बच्चे ने जब कंप्लेन किया कि मां मैं प्लीज, मेरे को भूख लगी है, अपनी भाषा में, मां ने उसको रिप्लाई दिया कि नहीं, भले भूखा तू सो जा, लेकिन तेरे को आज कुछ खाने का नहीं मिलेगा. You have to practice your own. Right? He kept calling plaintively. Plaintive means constantly complaining. वो सतत अपनी आवाज से गा रहा था, मतलब बोल रहा था माँ प्लीज मेरे को खाना दे दो, भूख लगी है. माँ सतत उसको रिफ्यूजल दे रही थी, नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक तू नहीं सीखेगा. राइट? एंड आफ्टर अ मिनट और सो he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him. मां ने पूरी मछली साफ कर दी, थोड़ी बहुत जो बची थी. वो सतत भीख मांग रहा था खाने के लिए. एक बार ऐसा समय आया कि उसको ऐसा लगा कि मां एक मछली का टुकड़ा लेके अपने उसकी तरफ आ रही है. वो खुश हो गया. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. पग पछाड़ने लगा. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, and the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak, and waited a moment in surprise. मां बिल्कुल फिश को पकड़ के नजदीक आ गई थी. उसको ऐसा ही लगा
कि माँ मेरे को खाना देने आई है, लेकिन बिल्कुल नजदीक आके वो होल्ड हो गई, मतलब हॉल्ट हो गई, रुक गई. He waited a moment in surprise, wondering why she did not came nearer, and then, maddened with hunger, he dived at the fish. माँ बिल्कुल नजदीक आई, उसको ऐसा लगा कि माँ रेडीमेडली मेरे को दे देगी, लेकिन जैसे वो नजदीक का डिस्टेंस था, वो खाने के लिए पागल हो चुका था, भूख लगी थी. माँ ने जैसे वो नजदीक आया बच्चा, माँ ने वो निवाला छोड़ दिया. With a loud scream, he fell towards, outward and downward into the space. ये घटना पूरी लेज के पास ही हुई. माँ ने सोची समझी एक युक्ति बनाई, विचार बनाया, बिल्कुल उसके पास आके वो निवाला छोड़ दिया. उसको भूख तो लगी थी, वो इसीलिए वो निवाले को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा. उसके पीछे भागा तो वो जो धार थी, लेज थी, उधर से वो आगे बढ़ गया था. अब वो आकाश में था, नीचे समंदर था, ऊपर आकाश था, कुछ सपोर्टिंग वाला नहीं था, उसको भी मालूम नहीं था. There was a monstrous terror seized him in his heart. He could hear nothing, but it lasted only a minute. फिर उसको समझ में आया क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल सस्पेंडेड हूं हवा में, नीचे पानी है, बड़े बड़े वेव्स की आवाज आ रही है, ऊपर आकाश है, मां कहां गई, पीछे छूट गई थी. 1 मिनट तक उसको डर भी लगा कि मैं मर गया, मर जाऊंगा, लेकिन दूसरे ही मिनट उसका डर समाप्त हो गया, खत्म हो गया. Now what happened, you see? The next moment, he felt his wing spread outward. The wind rushed against his breast feathers. पवन, wind, उसके feathers में भर चुका था, मतलब he was flying, क्योंकि as we fly against air, air rushes into our body, right? Under his stomach and against his wings. He could feel the tip of his wings cutting through the air. That means he saw flapping of his wings. His wings was cutting the air. मतलब आसानी से वो पहली उड़ान भर चुका था. His first flight. बराबर, वो पहली उड़ान भर चुका था, आकाश में पहुंच चुका था. आया समझ में? He was soaring gradually downward and outward. That means now he started to make a acrobats, stunt. कोई बार ऊपर जाता था, कोई बार नीचे आता था. Now he was really enjoying, right? He was no longer afraid. पूरा डर समाप्त हो गया, खलास हो गया. He just felt a little bit dizzy. Dizzy means little bit frightened. डर पूरा चला गया था, लेकिन जब वो नीचे देखा, पानी ही था, तो थोड़ा डर लगा, लेकिन अपने डर को कॉन्कर कर लिया. राइट? ड्रिजी मीन्स फ्राइटेंड. आप उसका मीनिंग लिखो, देखो दिया गया है, ड्रिजी, फ्राइटेंड. राइट? Then he flapped his wing once and soared upward. वो नीचे आया, लेकिन अपने डर पे जीत में लेके वो वापस उड़ने लगा ऊपर की तरफ. गा गा गा. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. Mother was so happy. Mother ये सब देख रही थी. वो जब उड़ान भर रहा था, पहली उड़ान, तो माँ भी उड़ते उड़ते उसके बगल में से निकल गई, happily congratulating him for his first flight. He answered her with another scream. माँ ने जब उसको स्क्रीमिंग से जवाब दिया, बच्चे ने वही स्क्रीमिंग से माँ को जवाब दिया. बहुत मजा आता है. माँ ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, आखिरकार बेटा सीख गया. बेटा बोलता है, हाँ माँ, आपकी कोशिश कामयाब हुई, मैं सीख गया. राइट? He answered with the same scream. Then his father flew over him screaming. जैसे माँ को जवाब दिया, पिताजी उसके ऊपर से उड़ते उड़ते आए, उसको भी ऐसे बोला. And he saw his two brothers and sisters flying around, curveting him. Curveting means circling him, and banking and soaring and diving. मतलब पूरा फैमिली उसके साथ उड़ान भरने के लिए निकल चुका था. ऊपर पिताजी थे, साइड में उसके भाई बहन थे, इस साइड उसकी माँ थी. सब चिल्ला रहे थे, इसको एनकरेज कर रहे थे, और ये भी इक्वली रिस्पॉन्सिव जवाब दे रहा था. मतलब ही वॉज एंजॉयिंग हिज फ्लाइट. उसको दबा रहे थे, मतलब टेक्निक सिखा रहे थे, उस पर हावी हो जाते थे, वो ताकि नीचे जाए, वापस
उठता था. Curvating him means protecting him, right? Then he was completely forget that he has not always been able to fly. पूरा डर खत्म हो गया. And commanded him to dive and soar and cow shriekingly. Shrieking, that means he started his all techniques. He was rotating, he was coming down, he was diving, he was lifting himself. पानी को ओढ़ रहा था, पानी से ऊपर उठ रहा था. जो सीगल में टेक्निक होनी चाहिए सब आ गई एक ही बात में, right? Now he was near to the sea, flying straight over it. सी के ऊपर वो पैरेलल उड़ रहा था, right? Facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him. नीचे देखा तो बिल्कुल स्वच्छ पानी था ओशन का. ऊपर आकाश में वो उड़ रहा था, right? The little ridges moving over it and turned his beak sideways and growled amusingly. Growl amusing means making amusement sound. नीचे देखा तो पानी था, साइड में देखा दोनों साइड तो उसका घर खूब पीछे छूट गया था. उसकी रिज खूब, मतलब वो ओशन में काफी दूर तक उड़ान भर चुका था, घर बहुत पीछे छूट गया था, राइट? Crowd amusedly. His parents and his brothers and his sisters had landed on the green flooring ahead of him. वो भी फिशिंग करने लगे. अब उसका नया दाव था तो वो भी उसको ललचा रहे कि चलो हम जैसे डाइव लगा रहे हैं पानी में on the surface of water to catch the fish, आप भी ऐसे डाइव लगाओ, right? He dropped his legs to stand in the green sea. His legs sank into it. He screamed with a flight and attempted to rise again, flapping his wings. उसके पैर पानी को छुए, थोड़ा डर लगा, वापस उठा लिया, अपनी विंग्स फ्लैप की. But he was tired and weak with hunger and he could not rise it. इतनी उड़ान भर चुका था और कल का भूखा था. He felt little bit tired, exhausted by the strange exercise. ये उसकी पहली उड़ान थी. His feet sank into the green sea. Then his belly means पेट का हिस्सा, touched it and sank no further. उसको ऐसा लगा कि मैं डूब जाऊंगा, लेकिन जब उसके पैर पानी में अड़े, उसका पेट का हिस्सा पानी में अड़ा. पेट का हिस्सा लाइट होता है, बॉडी हॉलो होता है. उसको ऐसा लगा मैं डूब जाऊंगा, लेकिन वो डूबा नहीं, पानी के सरफेस पे वो तैरने लगा, राइट? He was floating on it. And around him his family was screaming, praising him, and his beak was offering a scrap of dogfish. Right? उसके फैमिली मेंबर्स कोई पानी पे तैर रहे थे, कोई नीचे उड़ान भर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे और उसको बोल रहे थे कि पानी पे आ गए हो तो नजर लगाओ उसमें पानी में, शायद एक मछली आपके हाथ में आ जाए और आपकी मेहनत का आज आपको खाने को मिल जाए. And he was searching for a dogfish. Dogfish is the name of a fish, right? And this is how he made his first flight, with the support of his family, right? So this was our part 1, that is called his first flight. कैसे बच्चे को उसकी पहली उड़ान माँ बाप ने सिखाई, कैसे उसका डर निकाल दिया और वो बच्चा आगे बढ़ गया. So this was a story. I hope children you have understood. Each and every meaning is glossary is given, right? Still if you don't understand, you can tell me or try to find from dictionary. Okay children? So in homework we are supposed to write question answers of textbook, right? All the questions and answers are given in material as well as textbook. As a part of your homework, you are supposed to write, right? Homework. Write question answers given in textbook or material.
right? This is your work. Okay, children? So I am ending my first lecture. See you in next lecture. Till then, goodbye. Take care.